नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशंस पेपर का अध्ययन अपन इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या युगपत अवकल समीकरण। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस की संख्या जो रहेगी वो उतनी ही रहेगी जितनी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास है, और सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी। इस प्रकार के समीकरण को हम अचर गुणांक वाले युगपत रैखिक अवकलन समीकरण भी कहते हैं। इनकी जो फॉर्मेशन रहेगी वो कुछ इस तरह की सी रहेगी। Differential equation is this such type: f1d of x plus f2d of y is equal to phi of t, and g1d of x plus g2d of y is equal to psi of t. f1 f2 g1 g2 f1 f2 g1 g2 are polynomial and d is stand for the dy dt, because the independent variable is here t and dependent variable are x and y. So here we are going to solve these type of equations and we will find out the value of x and y in terms of t. तो ये सामान्य जो हम साइमल्टेनियस पोलिनोमियल इक्वेशंस जिस तरह से सोल्व करते थे उसी प्रकार इनको भी अपन सोल्व करेंगे। और जैसे इक्वेशन नंबर 1 है अपने पास यहाँ पर ये, और इसको अगर इक्वेशन नंबर 2 दें तो इक्वेशन 1 को ऊपर में g1d ऑपरेट कर दो, इक्वेशन 2 पर मैं f1d ऑपरेट कर दूँ, और फिर एक में से दो को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन तो x हमारा लोपित हो जाएगा और एक डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी in terms of y and t, where t will be the independent variable and y is our dependent variable. After getting the value of y, we will substitute the value of y in the first equation or in second equation and then get our next variable x. एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसका, उससे अपन आसानी से समझेंगे। Number first, this is our d of x is equal to x minus 2 and d of y is equal to 5x plus 3 of y. एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया अपन ने। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि इक्वेशन जो पहली इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं d minus 1 of x, this is 2y, plus twice of y is equal to 0. And second equation can be written in this form: 5 of x minus d minus 3 of y is equal to 0. ये एक नंबर इक्वेशन है, ये अपनी 2 नंबर इक्वेशन है। तो इक्वेशन 1 पर
d माइनस 3 ऑपरेट करने पर तथा दो को 2 से गुणा करके जोड़ने पर, देखिए मैं इसको d माइनस 3 से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास बचेगा यहाँ से d माइनस 3 एंड d माइनस 1 ऑफ x प्लस 2 इंटू d माइनस 3 ऑफ y बराबर 0। और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो दिस इज नथिंग बट 10 ऑफ x माइनस 2 इंटू d माइनस 3 ऑफ y बराबर 0। अगर इनको अपन जोड़ लेते हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, मेरे पास बच जाता है यहाँ से d माइनस 3 एंड d माइनस 1 प्लस 10 ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसको सरल करते हैं अपन। हमारे पास बच गया डी स्क्वायर माइनस ऑफ 4d प्लस 13 ऑफ x बराबर 0। This implies this is an ordinary differential equations with constant coefficients. So our auxiliary equation is m square minus 4m plus 13 is equal to 0, means m is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac 52 upon 2, and this gives us 2 plus minus ये हो गया अपने पास 36 minus 36 means iota and 6 means 3 iota. So CF या कहें कि इसका x is equal to exponential of twice of t c1 cos 3t plus c2 sin of 3t. So this is our x, and now we want to find out the value of y also. So dx upon dt is equal to exponential of twice exponential of 2t and c1 cos 3t plus c2 sin of 3t and प्लस एक्सपोनेंशियल 2t, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास c1 कोस का डिफरेंस है साइन ऑफ 3t एंड प्लस ट्वाइस c2 कोस ऑफ 3t। यहाँ भी एक बार माइनस 3 आएगा एंड दिस इज डिफरेंस। सो वी गेट dx upon dt, this is nothing but the d of x. Now you are using the equation number first. The equation number first is this one, d minus x, so dx minus x. So dx is this one. From first, y is equal to 1 by 2 x minus dx by dt, and this is our dx by dt, this is our x, the value on putting the value in this one, we get y. So this implies y is equal to 1 by 2 and x is nothing but the exponential of 2t and c1 cos of 3t plus c2 sin of 3t and minus this one. So this one is equal to twice exponential of 2t and c1 cos of 3t
plus C2 sine of 3t and minus exponential 2t and minus 3c1 sine 3t and plus 3c2 cos of 3t. So after solving this one, we will get the answer of y, and this is our answer of value of x. So y is equal to one by 2, and this is the same, तो माइनस एंड माइनस हो जाएगा दोनों, तो माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ 2t c1 cos of 3t plus c2 sin of 3t and minus e की पावर 2t and यहाँ आ गया c1 3c1 sin of 3t and plus 3c2 cos of 3t. इसको और सोल्व करें, सोल्व हो जाएगा c1 एंड प्लस 3c2 cos 2t cos 3t आ जाएगा एंड c2 माइनस प्लस 3c1 sin 3t into e power y twice of t. This will be the value of y. So this is our process. एक एग्जांपल अपना और लेते हैं. Problem number 2. dx plus d of y minus twice of y is equal to 2 cos 2t minus 7 of t, and दूसरी इक्वेशन मेरे पास dx minus d of y plus 2 of x is equal to 4 cos t and minus 3 of sin t. देखिए इक्वेशन में dx plus dy minus of 2y 2 cos t minus 7 t dx minus dy plus 2 of x plus 4 cos t minus 3 sin t. Okay, so problem is our in this form. हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं d of x plus d minus 2 of y is equal to twice cos of t minus 7 sin of t. And second equation है अपने पास d plus 2i's of x minus d of y is equal to 4 cos of t minus 3 sin of t. ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी अपनी, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी. इक्वेशन नंबर 1 को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद d प्लस 2 ऑपरेट कर देते हैं और 2 पर अपन d ऑपरेट कर सकते हैं और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x गायब हो जाएगा. और अगर अपन y को अगर विलोपित करना चाहेंगे तो हम इक्वेशन नंबर 1 को d ऑपरेट कर देंगे और इक्वेशन नंबर 2 पर d माइनस 2 ऑपरेट करके ऐड कर लेंगे, तो उससे हमारे पास y गायब हो सकता है. तो चलिए अपन शुरू करते हैं इसको. एक को समीकरण 1 पर d ऑपरेट करते हैं अपन तथा समीकरण 2 पर d माइनस 2 ऑपरेट करते हैं. ऑपरेट करके जोड़ते हैं. तो एक के ऊपर अपन करें डी को ऑपरेट कर रहे हैं, एक को डी ऑपरेट करने से हमारे पास आएगा दिस विल बी
डी स्क्वायर एक्स प्लस डी माइनस 2 एंड डी ऑफ वाई, एंड इस पर डी अगर मैं ऑपरेट करूँगा तो यहाँ से देगा माइनस ट्वाइस साइन ऑफ टी प्लस 7 कोस ऑफ टी। और 2 के ऊपर आप कर रहे हैं डी माइनस 2 ऑपरेट, तो डी माइनस 2 अगर ऑपरेट करूँगा तो मेरे पास मिलेगा डी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस डी माइनस 2 ऑफ वाई, और डी माइनस 2 इसके ऊपर ऑपरेट करूँगा तो मेरे पास आएगा, एक डी ऑपरेट करूँगा तो क्या माइनस 4 कोस टी एंड माइनस 3, सॉरी डी ऑपरेट किया तो 4 ऑफ साइन टी एंड 3 कोस ऑफ टी एंड डी माइनस 2 से आ जाएगा माइनस 8 कोस ऑफ टी एंड माइनस 2 से प्लस 6 साइन ऑफ टी। देखिए मैंने d माइनस 2 ऑपरेट किया इधर से, तो पहले d ऑपरेट किया इसके ऊपर, तो इस पर d ऑपरेट करूँगा तो मैं माइनस 4 साइन टी माइनस 3 कोस टी, फिर माइनस 2 ऑपरेट करूँगा तो माइनस 8 कोस टी एंड प्लस 6 साइन टी। ये दोनों चीज़ें सेम है अपनी, ऐड कर देते हैं, अगर अपन जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ से अपने पास आ जाएगा ट्वाइस डी स्क्वायर माइनस 4 एक्स, और इधर से मेरे पास बचेगा माइनस का ट्वाइस साइन टी एंड प्लस का ट्वाइस साइन टी 0 एंड कोस टी, दिस इज 7 कोस टी एंड 11 कोस टी, तो मीन्स माइनस के 4 कोस टी, तो अपने पास बच गया अपने पास था डी स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स ये माइनस था, सॉरी, तो 8 3 11 7 18 माइनस 18 कोस टी, तो इससे हमारे पास ये आ गया डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 9 कोस ऑफ टी। इट मीन्स पहले एक्सिलरी इक्वेशन लेंगे अपन, तो एम स्क्वायर बाई 2 एम स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स एम इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2, तो एक्स सी एफ बन गया अपना C1 e की पावर रूट 2t एंड प्लस C2 e की पावर माइनस रूट ऑफ 2t, एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें अपन तो पी आई अपने पास यहाँ रहेगा 1/d स्क्वायर माइनस 2 एंड माइनस 9 कोस ऑफ t माइनस ऑफ 1, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस 9 अपॉन माइनस 3 एंड कोस ऑफ टी, पी आई बन गया 3 कोस टी, so x is equal to, this implies x is equal to CF plus PI C1 exponential root 2 of t plus C2 exponential minus root 2 of t and plus 3 cos of t। ये हमारा x आ गया। अब अपन को y चाहिए, तो मैं ये x का मान अगर 2 में रख देता हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट अपने पास dy का वैल्यू आ जाएगी और वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि अपन सेपरेटली अभी y का विलोपन किया था, तो y की जगह अपन x का विलोपन करते हैं। चलिए पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर
हमने ये वैल्यू इक्वेशन के अंदर रखी थी और इस बार अपन दोनों को सेपरेट सोल्व करते हैं। हमारी इक्वेशन थी dx प्लस d माइनस 2y इज इक्वल टू ट्वाइस cos ऑफ t माइनस 7 sin ऑफ t। एंड दूसरी इक्वेशन थी d प्लस 2 ऑफ x माइनस d ऑफ y इज इक्वल टू 4 cos ऑफ t माइनस 3 sin ऑफ t। ये दो इक्वेशन थी। तो एक तरीका है कि जो x का मान अभी आया आपके पास वो x का मान इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख के इसको सोल्व कर लें, और दूसरा तरीका है कि हम x का विलोपन कर लें और y की वैल्यू सेपरेट निकाल लें। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन ऐसा करते हैं कि x को विलोपन करते हैं। x का विलोपन करने के लिए हमें इसको d प्लस 2 ऑपरेट कर देते हैं और इस पर d ऑपरेट कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन में जाएगी d प्लस 2 एंड d ऑफ x प्लस d स्क्वायर माइनस 4 ऑफ y बराबर d प्लस 2 ऑपरेट किया है यहाँ पर, तो ये बनेगा अपना d ऑपरेट करेंगे तो माइनस 2 sin t एंड प्लस 7 cos ऑफ t एंड प्लस 2 से मल्टीप्लाई आएगा तो प्लस का 4 cos t, तो प्लस 4 cos t एंड माइनस के 14 sin t। ये इक्वेशन है। और जो इक्वेशन सेकंड है इसको अपन d ऑपरेट कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास d प्लस 2 इंटू डी ऑफ एक्स माइनस डी स्क्वायर ऑफ वाई, एंड इस पर जब d ऑपरेट कर रहे हैं तो ये बनेगा माइनस 4 साइन ऑफ t माइनस 3 cos ऑफ t। ये अपने पास आ गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये कट जाएंगे, यहाँ से अपने पास बन जाएगा ट्वाइस डी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन टी बचेगा 14 तो 16 और 16 में से 4 के 12, तो माइनस 12 साइन ऑफ टी। कोस टी बचेगा अपने पास 7 और 4 11, और 11 में से 3 और जुड़ जाएंगे तो 11 3 14 कोस टी, 14 कोस टी। तो यहाँ मेरे पास बच गया डी स्क्वायर माइनस 2 ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस 6 साइन टी एंड प्लस 7 ऑफ कोस ऑफ टी। यहाँ सी एफ रहेगा, इससे C1 एक्सपोनेंशियल रूट 2t प्लस C2 एक्सपोनेंशियल माइनस रूट ऑफ 2t, एंड जो PI रहेगा अपने पास वो हो जाएगा अपने पास 1 डी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 साइन ऑफ t प्लस 1 डी स्क्वायर माइनस 2 7 ऑफ cos t। यहाँ से दे देगा अपने पास -1 -3 6 तो 2 साइन ऑफ टी, और यहाँ से अपने पास -1 -3 तो प्लस 7/3 cos ऑफ टी। सो y इज इक्वल टू CF मीन्स C1 एक्सपोनेंशियल रूट ऑफ t प्लस C2 एक्सपोनेंशियल माइनस रूट ऑफ t प्लस ट्वाइस साइन ऑफ t minus 7/3 cos of t. This is our value of y, and we have already obtained the value of x in separate form. So in this way also can solve our simultaneous differential equation. Thank you.